Poetic devices. So poetic devices, they are the form of literary devices that are used in the poetry. For example, just like women love to wear jewelry to enhance their look, in the same way, in the poetry, we use the poetic devices or literary devices to enhance its quality. सो इन हिंदी पोएटिक डिवाइसेस एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करने से पोएट्री की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है. It is used to create rhythm, enhance a poem's meaning and intensify its mood. Hi everyone, this is me Mokshi Gambhir and I'm back with yet another video of poetic devices. So I thought to make this video because the exams of students, they are approaching, they're around the corner, and my students are facing a lot of problem in remembering the poetic devices. So I thought, why not to make a video for that? So I'm here with the video. So without any further ado, let's start with the video. Starting with the first one and the very easy one, that is alliteration. Alliteration is the repetition of initial alphabets continuously of multiple words. इन हिंदी जब भी किसी लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के इनिशियल अल्फ़ाबेट सेम होते हैं उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बिग बग बाइट. So here the initial alphabet, that is B and B are same. So here alliteration as a poetic device is being used. Next one is, that is symbolism. So symbolism is used to represent abstract concepts or in their stories. So symbolism is typically derived from the objects or from non-human things. The greatest example of symbolism is this. Black not only symbolizes the color black, but it also symbolizes something evil, something dangerous, something which doesn't give a good vibe. सिम्बॉलिज्म एक्चुअली ऐसा एक शब्द है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी नॉन ह्यूमन चीज़ तो अपने डायरेक्ट मीनिंग के साथ साथ बाकी और चीज़ों को भी दर्शाता है. जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया, ब्लैक ना ही सिर्फ कलर दर्शाता है ब्लैक, बट ब्लैक यहाँ पे समथिंग ईविल, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ख़राब चीज़ है या फिर कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड कोई चीज़ है, हम सारी की सारी चीज़ों को ब्लैक से जोड़ देते हैं. सो ब्लैक हेयर सिम्बलाइजेज समथिंग ईविल, समथिंग फिशी, समथिंग नॉट गुड, राइट? दिस इज व्हाट सिम्बॉलिज्म इज. थर्ड वन इज दिस, simile. So simile is used to draw comparison or resemblance between two things. For example, thing A is like thing B or thing A is as dash as thing B. So जहाँ पे भी comparison या फिर resemblance है दो चीज़ों के बीच में using the word as और like, वहाँ पे हम simile का use करते हैं या वहाँ पे simile का use होता है. जब भी दो चीज़ों के बीच में comparison है using the word as और like, वहाँ पे simile का use होता है. For example, Reena is as beautiful as flowers और रीना इज़ लाइक फ्लावर. सो यहाँ पे हमने रीना की तुलना या रीना का कंपैरिजन फ्लावर्स से किया है दोनों केसेस में, और यहाँ पे पहले में हमने यूज़ किया वर्ड एज और दूसरे में हमने वर्ड यूज़ किया लाइक. द अदर वन इज दिस, दैट इज personification. It uses human traits to describe the non-human being. For example, he rules the jungle. So he here is used for the lion, but lion is an animal wherein we use it for the animals. But यहाँ पे we have used he for animals. So this is the perfect example of personification जहाँ पे हमने एक human character use किया है, human trait use किया है non-human things को दर्शाने के लिए या फिर animals को दर्शाने के लिए. Next one is, so this is oxymoron. This is otherwise a common yet uncommon poetic devices and students get so confused while using it. In oxymoron, we use two contradictory words to describe one thing. Again, two contradictory things to describe one thing. इसमें हम दो अलग अलग, दो opposite चीज़ों को लेते हैं एक साथ एक चीज़ को describe करने के लिए. For example, labored ease.
अब यहाँ पे लेबर्ड ईज का क्या मतलब है? लेबर्ड का मतलब क्या होता है? सम वर्क विच इज़ लेबोरियस, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, एंड उसी के साथ हमने एक वर्ड यूज़ किया है ईज. ईज हेयर रिप्रेजेंट समथिंग विच इज़ वेरी ईजी. सो यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड्स ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, दोनों ही वर्ड कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं. सो इस वजह से यहाँ पे जो परफेक्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट वन इज दिस. So it is known as hyperbole. It is an exaggerated statement that emphasizes the significance of the statement's actual meaning. In Hindi it means जब हम किसी एक शब्द पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस या प्रेशर डालते हैं ताकि हम उससे कैलकुलेट कर पाएँ कि उस शब्द का एक्चुअली में मीनिंग या उस शब्द की एक्चुअल में इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्टर दैन द विंड. अब इसमें वो एक्चुअली विंड से ज़्यादा तेज़ तो नहीं भागता है, बट स्टिल वी हैव यूज्ड ही रन्स फास्टर दैन द विंड. सो इट इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन द पार्ट विंड, राइट. ही रन्स एक्सट्रीमली फास्ट. सो ये यहाँ पे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो बहुत तेज़ भागता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे उसका कंपैरिजन विंड के साथ किया है कि वो विंड से भी ज़्यादा तेज़ भागता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है. द मेन पॉइंट वॉज कि वो बहुत तेज़ भागता है, राइट. जब हम बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को कहते हैं, सो दैट इज नोन एज हाइपरबोल. नेक्स्ट वन इज दिस, imagery. So imagery is used when we have used a highly descriptive language in our text. This rule is show, don't tell. As strong imagery truly paints a picture of something in our mind. Its meaning in Hindi is जब टेक्स्ट में कुछ ऐसी हैवी वर्ड्स का या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या उसको एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो कि उस पर्टिकुलर चीज़ की इमेज हमारे दिमाग में छप जाए, सो उसको बोला जाता है इमेजरी. सो इट्स रूल इज़ शो डोंट टेल. खाओ पर बोलो मत, बिकॉज वहाँ पे जो लिखा होता है वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और अच्छे तरीके से लिखा होता है कि उसकी इमेज अपने आप ही हमारे दिमाग में छप जाती है. फॉर एग्जाम्पल, माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम. अब ये बोलने के बाद कि मेरा सिर ड्रम की तरह फटे जा रहा है, इमेजरी कैसे यूज़ हुई है कि ये लाइन सुनते ही हमारे दिमाग में अपने आप ही ड्रम की आवाज़ आने लग गई, या फिर हमारे दिमाग में अपने आप ही ड्रम की एक इमेज क्रिएट हो गई, राइट. सो अगर ऐसे कुछ भी सुन के या बोल के या पढ़ के हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि उसकी इमेज ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्रिएट हो रही है, समथिंग डिफरेंट, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इमेजरी. नेक्स्ट वन इज़ दिस, irony. So irony is a really common poetic device, and it creates a contrast between how things seem and how they actually are. In Hindi it means जब दिखता कुछ और है पर actually होता कुछ और है, यहाँ पे हम irony का यूज़ करते हैं. For example, the pilot has fear of heights. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो पायलट है, ही मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ही मस्ट बी वेरी फियरलेस, बट एक्चुअली उसको हाइट्स का डर है. सो यू नो देर आर टू कंट्रास्टिंग थिंग्स इवेंचुअली, कि दिखने में तो वो पायलट है बट एक्चुअली में उसको हाइट्स का डर है. सो दीज आर सम टू कंट्रास्टिंग थॉट्स जो कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आ सकते एक पायलट के बारे में सोच के. सो दिस इज़ वॉट इज़ आयरनी, जब दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट होता है, एज इन दिखता कुछ और है और एक्चुअली में होता कुछ और है. नेक्स्ट वन इज दिस, onomatopoeia. So this is a really easy one, but students usually get confused with it, and they actually find it very difficult actually because of the name, in which words evoke the actual sound of the thing they are referring to. इट्स मीनिंग इन हिंदी इज, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी साउंड के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसी ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है, सो जब हम उस साउंड का नाम ले लेते हैं और वो साउंड ही एक्चुअली में एक वर्ड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया. वंस अगेन, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या उसकी साउंड के बारे में बता रहे हैं स्पेसिफिकली, और उसकी साउंड अपने आप में एक शब्द बन जाता है, तो उसको बोला जाता है ओनोमेटोपिया. फॉर एग्जाम्पल, द टिंग टोंग ऑफ अ बेल, द टिक टॉक ऑफ क्लॉक, or the boom of firework. Next one is this, repetition. So repetition is a really easy poetic device in which actually 2 to 3 words, they get repeated after and after to get attentive towards an idea. For example, let it snow, let it snow, let it snow.
So here in one line we have used let it snow thrice. So this is actually repetition, ताकि हमारी जो attention है उस पूरे idea पे पूरी तरह से focus हो सके. Next one is the enjambment. It is the continuation of a sentence beyond a line break, couplet or stanza without an expected pause. Its meaning in Hindi is that when the poet initiates a stanza and there is no pause throughout the stanza. For example, this. So here you can see the poet hasn't paused throughout the stanza. Next one is metaphor. So in metaphor, we compare two things, or I would say the similar things, by saying that one of them is the other. Its meaning in Hindi is जहाँ पे हम एक चीज़ को दूसरी सेम या सिमिलर चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ये बोल के कि this thing is exactly like this. For example, his words cut deeper than the knife. So यहाँ पे हमने उसके वर्ड्स को नाइफ के साथ कंपेयर किया है. ऐसा नहीं है कि वर्ड्स एक्चुअली में चाकू की तरह काटते हैं, पर उसके वर्ड्स इतने तीखे हैं या फिर इतने हर्टफुल होते हैं कि वो नाइफ से भी ज़्यादा चुभते हैं. सो हियर वी हैव डन द कंपैरिजन, जहाँ पे शब्द भी तीखे हैं और नाइफ भी तीखा है. That's it with the poetic devices. So I've covered most commonly used poetic devices in our English literature, and that's it with the video. If you learned something new with this video, then do like, share, comment, and please subscribe to this channel. Quick Wits. Thank you. Stay tuned. Bye bye.